we have another episode of Zaiki Ka Safar Aaj, where we are talking about Konkani Muslim food and Konkani Muslim cuisine actually. So Konkani Muslim is a community which is in India, and now we are going to explore more about the community, where they live, where they are from, how is their culture, and what they eat. So we have Seher with us today, and she's called as the Bombay Gluten, and she's going to share her experience about the community now. Hi. Thank you for inviting me on Delhi Food Walks. It's a pleasure to be here and talk about my community and its regional cuisine. Thank you so much. Kokni Muslims is something that people want to know now more about. So I'll just quickly give a gist of who we are. हम कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, क्योंकि कोकनी मुस्लिम बोल दिया बट कितने लोगों को पता नहीं कि भैया ये आते कहाँ से हैं. Kokni Muslims are found in the coastal belt of Maharashtra. So महाराष्ट्र के जो coastal districts है, जो coast को लगकर है, जैसे ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इनके coastal stretches में कोकनी मुस्लिम community पाई जाती है. We are one of the oldest communities, Muslim communities in India. So just like Moplas of Kerala, Navayats in Karnataka, Kokni Muslims also have the same ancestral heritage where we have evolved from the Arab mercantile community. तो जब All Arabs right. trade करने के लिए इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आते थे, तो तब उन्होंने यहाँ सेटल होना शुरू हुआ, यहाँ शादियां करना शुरू की, एंड उससे ये कम्युनिटी पनपी है. तो हम पिछले 1300 साल से एग्जिस्टेंस में हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में. एंड हमारे जो क्लोज काउंटर पार्ट्स है, जैसे मैंने अभी बताया, केरला की मोपला कम्युनिटी है, नवायत्स हैं कर्नाटका में. तो हम एक तरह से जैसे यू कैन से डायस्पोरिक इन्फ्लुएंस भी बोला जा सकता है, बट बहुत प्राचीन काल का डायस्पोर. आज की तारीख में हम पूरे तरह इधर सेटल्ड है, बिकॉज 1300 साल पहले से यहाँ लोग आना शुरू होके ये कम्युनिटी का एवोल्यूशन हुआ है. एंड बिकॉज हम कोस्ट में सेटल्ड है, हमारा खाना बिल्कुल एक कोस्टल क्विजीन के तौर पर उभर कर आता है. अगर आप कोकनी मुस्लिम्स क्यों ये नाम पड़ा, बिकॉज हम कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा नाम कोंकणी मुस्लिम Right. पड़ा. इसलिए द कम्युनिटी इज कॉल्ड, सो इट्स नॉट कोंकणी, इट्स कोकणी मुस्लिम, बिकॉज यू से कोंकण. Okay, so in our dialect, it's called Konkan. So Kokani Muslim. Okay, so it's the name of the community after the coastal stretch in which they live. So because हम coast में हैं and because we are in Maharashtra, our cuisine is very reflective of the Maharashtrian style of cooking. एंड कुछ कुछ चीजों में आप एक तरीके का मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखोगे, जिस तरह से कुछ स्वीट डिशेस, कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, तो उसमें थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी उभर कर आता है. बट लार्जली हमारी क्विजीन इज इन अ वे सिमिलर to the various aspects of Maharashtrian cuisine, yet it retains its own character in various places. So वो भी मैं explain करूंगी. So like I said, because we are people of the coast, seafood, rice and coconut are the key ingredients of our cooking. So unlike, people think, the moment people think Muslims, they think Mughlai food. But I think that is a very generic interpretation of Muslim cuisine, because whichever region the Muslim community belongs to, they have showcased that region specific nuances in the cuisine. So, like we are coastal folk, because we are from the coast of Maharashtra, seafood, rice, and coconut are integral to our cooking. If I can say that. And rice इतनी अलग अलग तरीके से यूज होता है, जैसे हमारी रोटियां भी चावल की बनती हैं, चावल के आटे की Wow. बनती है. तो हम राइस को, हमारे जो कोकनी डायलेक्ट है, सो वी स्पीक अ डायलेक्ट विच इज द स्पिन ऑफ फ्रॉम द मराठी लैंग्वेज.
सो इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड ऑल, एंड अपना एक लहजा है बोलने का. सो हम चाउर बोलते हैं, चाउर. ओके, सो राइस इज कॉल्ड चाउर. तो राइस Saur. से जो चाउर, चाउर, CHAUR, इफ आई वाज टू स्पेल इट इन इंग्लिश, चाउर. बट वो लहजा वैसा है. अभी उसको अगर हम फ्लार बनाते हैं, चावल का आटा बनाते हैं और उससे जो रोटियां बनाते हैं उसको हम सावराची रोटी बोलते हैं. ओके, तो वो सावराची रोटी हम 2 से 3 टाइम खा सकते हैं, मतलब हम नाश्ते में भी खा सकते हैं अंडे के साथ. So that is one way of using rice in our daily, diet. कि उसकी रोटी बनाई जाती है. अभी नॉर्मली हम आप जैसे बोलते स्टीम राइस बनता है अलग अलग करीज के साथ खाने, वो भी हम बनाते हैं. हम राइस को रवे की कंसिस्टेंसी तक पीसते हैं एंड उसको हम अलग अलग चीजों में अगेन यूज करते हैं. तो हम पैनकेक्स अलग अलग तरीके के बनाते हैं. अभी पैनकेक्स इंग्लिश वर्ड है, यूज कर रही हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो. So people Right. don't misinterpret me when I say pancakes because I don't know how to represent that word in English. Because अगर मैं घावने बोलूंगी, अगर मैं आयते पोले बोलूंगी, तो आप लोग सोचोगे मैं क्या बोल रही. तो एक रेफरेंस सेट करने के लिए I'm using the word loosely, which is pancakes. But what I meant to say is कि उस तरह के मतलब चीजें बनाई जाती हैं. तो वो रवे की कंसिस्टेंसी में पीसा जाता है, थोड़ा मोटा पीसा जाता है एंड उससे हमारा सिग्नेचर ब्रेड सांदन भी बनता है. तो मेरे पास सांदन है आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ बने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि सांदन दिखते कैसे हैं. डू यू सी दिस? So, this is इडली like जैसा the लग रहा है आपको? proper, yes. ब्रेड, हाँ, इडली जैसा लग रहा है ना, इसे हम सांदन बोलते हैं. दिस इज आवर कम्युनिटी सिग्नेचर राइस ब्रेड. इट इज स्टीम्ड. ओके, दोनों तरीके से बनता है, मीठा बनता है और सादा बनता है. ये सादा है. ओके, क्यों सादा और मीठे का फर्क बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो सादा बनता है वो करीज के साथ खाया जाता है, मटन करी के साथ खाया जाता है. मैं जब ईद की बात करूंगी तब इस पे आऊंगी. और ये इसमें हमने रवे की कंसिस्टेंसी को हमने चावल को पीसा है. फिर उसको हमने कोकोनट मिल्क शुगर के साथ फर्मेंट किया है. अभी हर घर की अपनी रेसिपी होती है. कोई Right. उसमें अंडे की सफेदी डालता है, कोई उसमें यीस्ट डालता है. सो सबका अपना अपना अंदाज होता है. और ओवरनाइट फर्मेंट करके दूसरे दिन इसको स्टीम किया जाता है. तो किसी को जिसको इल्म ना हो उसको ऐसा लगेगा कि ये इडली है. अलग तरीके की इडली दिख रही है, थोड़ी फ्लैट वगैरह अगर आप देखोगे. और उसके बैटर को ना हम, ये देखिए हमारे साँचे ऐसे दिखते हैं सांदन के. So you ferment it. या तो ये फर्मेंट, तो ये क्या होता है, आप एक रात पहले पूरा ये पीस के उसको कोकोनट मिल्क मिला के शुगर वगैरह के साथ ये करके आप फर्मेंट करने रखते हो और दूसरे दिन आप स्टीम करते हो. ओके, तो दूसरे दिन आप Beautiful. इसमें डालकर उसके इसमें स्टीम करते हो, तो वो ऐसे कुछ निकलते हैं. ओके, एंड दे आर टू बी ईटन विथ करीज. तो ये सेवरी वर्जन जो हम बोलते हैं, ये मीठा नहीं है. इफ आई ब्रेक इट, सी, इट्स लाइक अ स्टीम ब्रेड. या So इसका texture is lighter than idli. नो, डेंसर देन इडली. Okay. इडली इज मोर फ्लफी, दिस इज मोर डेंसर. Okay. Got it. ये प्रॉपर ब्रेड की तरह आप Beautiful. इसको करी में डुबाओगे एंड मटन करी के साथ ये जाता है. ओके, अब इसका एक स्वीट वर्जन बनता है जिसमें केसर पड़ता है और सर्व करते हुए क्रीम एंड केसर एंड ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं. दैट इज द स्वीट वर्जन. When I come to wedding rituals, na, I will tell you more about the sweet version. But this is our Okay. signature bread. So इसे सांदन हम कहते हैं. Okay, so I thought I'll show it to you because ये आप लोग को कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा. ये आपको एक कोकनी मुस्लिम घर में ही मिलेगा. So Right. I'll just repeat myself because I was, I think, trying to clean the mess that I made. So I'm saying मैंने ये सांदन आपको आज इसलिए बताया क्योंकि ये आपको कोकनी मुस्लिम घर में ही मिलेगा. बहुत कम, अगर कोई होम शेफ है जो बना के दे रहा है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. वरना रेस्टोरेंट्स में तो ये खासा मिलता नहीं है. एंड इसका टेक्सचर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इडली जैसा है. तो गोवन क्विजीन में सनास करके बोलते हैं, विच आर वेरी सिमिलर.
but they use Yes. toddy also as a fermentation agent. We do not use toddy. Okay, क्योंकि हमारे because we are Muslims, so alcohol is not permitted. So that's why fermentation agent also cannot be an alcohol. So इसलिए हमारे इसमें All right. toddy नहीं पड़ती. बट दैट इज आवर ब्रेड. तो मैं कह रही थी कि मैंने सांदन इसलिए बताया क्योंकि ये आपको ज्यादातर सिर्फ एक कोकनी मुस्लिम घर में मिलेगा, या तो अगर कोई होम शेफ आपको ये बनाकर खिलाने तैयार हो तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं. एंड गोवन कम्युनिटी में सनास करके बनाया जाता है विच इज वेरी सिमिलर टू दिस. खाली फर्क इतना है कि वो लोग टॉडी यूज करते हैं एज अ फर्मेंटेशन एजेंट, जो हम नहीं यूज करते हैं. हम उसको वी रिस्ट्रिक्टेड टू आर राइस फ्लावर का Right. विथ कोकोनट मिल्क शुगर एंड सम ऐड एग वाइट, सम ऐड यीस्ट, बट टॉडी यूज नहीं होता है. एंड इट्स दिस इज द सेवरी वर्जन जो मैंने आपको बताया, जो मटन के करी के साथ खाया जाता है, तो हम मासाचा सालना बोलते हैं. सो मास मतलब मटन, सालना मतलब करी. सो उसके साथ ये खाया जाता है. इसका जो मीठा वर्जन है उसमें केसर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ते हैं शक्कर के साथ. और हाँ, सो दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ यूजिंग राइस. फिर राइस के फ्लेक्स भी हम यूज करते हैं. तो आमतौर पे आपने पोहा सुना होगा. पोहा इज राइस फ्लेक्स, जो महाराष्ट्रियन क्विजीन में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट आइटम है, जिसे हम पोहे कहते हैं. कांदे पोहे बनते हैं. बट Right. हम जब पोहे यूज करते हैं तो हम सेवरी वर्जन नहीं बनाते, हम उससे एक स्वीट डिश ही बनाते हैं जो है सुखरी. ओके, तो सुखरी में हम वी यूज फ्रेशली स्क्रेप्ड कोकोनट, शुगर, कार्डमम पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ रोज वाटर. एंड उसको हम गीले पोहो को खाली मिक्स करके ऐसे ही खाते हैं. कोई कुछ लोग वो पूरा मिक्सचर चूल्हे पे चढ़ा के थोड़ी सी शक्कर मेल्ट कराते हैं एंड फिर खाते हैं, तो हम उसको सुकरी बोलते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ ईटिंग राइस. तो राइस के फ्लेक्स, तो चाहे आप चावल करी के साथ, दाल के साथ खाओ, चाहे आप आटा बना के रोटियां खाओ, चाहे आप उसका रवा बना के सांदन बनाओ, चाहे आप आटे के पैनकेक्स अलग अलग तरीके के बनाओ जो मैं बात करूंगी, एंड चाहे तो आप उसके फ्लेक्स खाओ. तो राइस का बहुत ही वास्ट यूज है हमारी क्विजीन में. एंड इट इज मोर फॉर द डेली यूसेज एंड डेली ईटिंग हैबिट. Right. ना राइस So, खाया किसके साथ जाता है? so you were talking about कि rice किसके साथ हम खा सकते हैं? Correct. So seafood is one of the things with which we eat rice very frequently. So because हम coastal community है, हमारे cuisine में seafood की अहमियत बहुत ही है. And when I say seafood की अहमियत मतलब जो fresh catch होता है, fresh catch हाँ. मतलब जैसे ही वो पकड़ा जाता है एंड बाजारों में लाया जाता है वो तो खाया ही जाता है. बट क्या होता है, यहाँ बारिश के मौसम में ना फिशिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज सी रफ रहता है. तो आपके मछुआरे सी में नहीं जा सकते बारिश के वो 3-4 महीने जो रहते हैं. तो तब हम क्या करते हैं, तो हम मच्छी सुखाते भी हैं. सो ड्राइड सी फूड बोलकर हम बहुत खाते हैं. तो ये कोलीज में भी बहुत प्रैक्टिस है. सो जो कोली कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, वो लोग में भी ये, एंड दूसरी कम्युनिटीज है महाराष्ट्र की जो कोस्टल फोक्स है, वो लोग भी ड्राइड सी फूड बहुत खाते हैं. तो ड्राइड सी फूड क्या होता है, जो आपकी आमतौर पर मच्छियां रहती हैं, पॉपुलरली जो हम बॉम्बे डक बोलते हैं, बोम्बिल की मच्छी जो बोलते हैं, उसको सॉल्ट करके धूप में सुखाया जाता है गर्मी के महीनों में, और वो एकदम सूख जाती है बिल्कुल, मतलब उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाता है. और फिर उनको है ना स्टोर किया जाता है ताकि जिस महीनों में हमें फ्रेश सी फूड नहीं मिले हम ड्राइड सी फूड खाएं. उसी तरह हर तरह के श्रिम्स और प्रॉन्स को खाया जाता है. तो इसलिए उनके नाम भी अलग अलग पड़ते हैं, जैसे बारीक सुकट, अंबारी सुकट, जवला, सोड़े, कोलिम. These are all the different varieties and sizes of shrimps which are sun dried for consumption. So ideally this was a way of keeping that sustenance alive for seafood even when you didn't have a fresh catch. क्योंकि बाकी के महीनों में तो मिल जाता है, बट उस टाइम पे क्या करें जब मच्छी अवेलेबल नहीं है और आपका खाना इतना डिपेंडेंट हो मच्छी पे. बट क्या है, लोगों को ड्राई सी फूड इज वेरी टेस्टी, तो हम साल भर भी खा सकते हैं अगर उतना वो चल जाए तो. बट फ्रेश एंड ड्राइड सी फूड बोथ आर वेरी integral to our everyday cooking.
सो फिश को हम भावरा बोलते हैं। तो मैं कुछ कुछ टर्म्स आपको बोलूंगी जो हमारे डायलेक्ट में यूज होते हैं। सी फूड इज अ जनरल टर्म, बट अगर आप फिश की बात करें तो कोई भी फिश को हम भावरा बोलते हैं। अब भावरे के अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे पापलेट हो गया, बोइट हो गई, रावस हो गया, तो वो नाम हो जाते हैं फिश के, बट कलेक्टिवली एज अ टर्म फॉर फिश इट्स भावरा। इफ आई से प्रॉन्स, तो for prawns we generally use the word kolbi or ओके। सो वैसे बट अगर आप डिफरेंट साइजेस ऑफ प्रॉन्स पे आ जाओ ड्राइड सी फूड में, तो फिर उनके नाम उस तरह से पड़ जाते हैं। तो सी फूड इज वेरी क्रिटिकल। आई हैव केप्ट अ प्लेट ऑफ ड्राइड सी फूड रेडी टू शो व्हाट ड्राइड सी फूड Wow. लुक्स लाइक, बिकॉज फ्रेश फिश तो आप सबने देखी ही होगी, बट मे बी सम पीपल हु love dried seafood must have already witnessed it, but for those who have not seen how it looks, I will just show you how dried seafood looks. So just give me a minute. Can you see it? Yeah. Yeah. तो ये जो है ना, ये एक तरह के ड्राइड श्रिम्प है जिसको हम जौला बोलते हैं। यू सी, बारीक है, एकदम सन ड्राई किए हुए हैं। क्लियरली दिख रहे हैं? Wow. Right. या दिस इज जौला, दिस इज अ काइंड ऑफ सन ड्राइड श्रिम्प। अब ये देखिए, दिस इज व्हाट इज द बॉम्बे डक फिश जिसको खाया जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। या, सी हाउ इट सन ड्राइड। ओके, So how is it used? When you'll use I'll it, tell how you. will you? I'll tell हाँ. you. I'll tell you. Just let me change the orientation. So अभी इनको हम कैसे यूज करते हैं? So there are various ways of using all these ingredients. So आप जो बोम्बिल फिश मैंने आपको दिखाई ना, वो कितने लोग बस उसको कुरकुरा करते हैं तवे पर और उसको क्रश करके दाल चावल के साथ खाते हैं। दाल धान हम बोलते हैं, दाल एंड धान, धानी स्टीम राइस। सो उसके साथ सिर्फ ऐसा क्रश करके भी खाते हैं। कुछ लोग उसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो हम उनकी चटनियां भी बनाते हैं। बोम्बिल की चटनी बड़ी अच्छी बनती है, यू नो, लाल मिर्चियों के साथ एंड लहसुन के साथ उसको मस्त बनाया जाता है, एकदम तीखी तीखी, अगेन दाल धान के साथ खाने के लिए। कितने लोग उसको प्याज के साथ फ्राई करते हैं मसालों के साथ, तो तलेला बोम्बिल हो जाता है, तलेला सुक्का बोम्बिल बोलकर। तो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो या तो बट रोस्ट करके, फ्राई करके चटनी के तौर पे, या एक स्टर फ्राई के तौर पे भी खाया जाता है। एंड जो जौला आपने देखा ना, उनको भी अलग अलग तरीके से खाया जाता है। तो हमारी जो सब्जियां रहती है, करेले की सब्जी जिसको हम कारली कहते हैं, या परवल की सब्जी, या बैंगन की सब्जी, उनमें हम जवला डालते हैं। तो वो सडनली वेजिटेरियन से हो जाती है एक नॉन वेजिटेरियन डिश। तो ईसन, हम उस प्रथा को ईसन बोलते हैं। ईसन टाक मतलब, ईसन मतलब फ्लेवर, तो मतलब वो सब्जी वाली डिश में हम सी फूड का फ्लेवर डालते हैं और वो फिर चावल की रोटी से खाते हैं। फिर ये जो सुक्कट और जवला है, सुक्कट इज स्टिल बिगर देन जवला। जो सुक्कट और जवला है उसको हम सुक्की तो खार करके एक साइड डिश है सैलेड के तौर पे। तो उसमें क्या किया जाता है, जो लाल मिर्च है उसका पेस्ट बनाते हैं, कोर्स पेस्ट। लहसुन भी कूटते हैं उसके साथ पकाते सिलबट्टे पे, हम लोग उसको पाटा वरवटा कहते हैं, और उसको प्याज के साथ मिला डालते हैं और ये सुकट को वापस भूनते हैं क्रिस्प होने तक। और उसको वो प्याज और चटनी के मिक्सचर में मिलाकर थोड़ा सा इमली का रस डालते हैं, तो वो सुक्की चोखार होता है। तो उसको फिर हम दाल चावल या रोटी के साथ खाते हैं। तो चटनी, सैलड, साइड डिशेस, रोस्टेड क्रिस्प, ऐसे मतलब अलग अलग तरीके लोगों ने इजाद किए हैं ये ड्राइड सी फूड खाने के लिए। तो दैट इज अ वे इन विच ड्राइड सी फूड इज कंज्यूम्ड। फ्रेश सी फूड का अपना अलग चलन है। तो डीप फ्राइड मतलब फ्राइड फिश, तलेला मुहावरा, डीप फ्राइड, सॉरी, फ्राइड फिश जो हम बोलते हैं, तलेला मुहावरा। सो अखे पीसेस जो रहते हैं वो फ्राई किए जाते हैं, वो भी दाल राइस या चावराची रोटी के साथ एंजॉय किया जाता है। फिर हमारी जो फ्रेश सी फूड करीज है उनकी भी अलग अलग वैरायटीज रहती है। जैसे हम अटौनी बोलते हैं, अटौनी मतलब आठवून घेतलेला, मतलब ड्राई करके लिया हुआ, मतलब उसकी जो करी है वो इतनी थिक रहती है कि वो आप रोटी से खाते हो, क्योंकि उसमें पानी सिर्फ उतना ही पड़ता है जितना है ना, मसाला जले नहीं, और जितना वो थोड़ा सा मछली को गलाने के लिए लगता है,
उतना यूज होता है। एंड उसमें भी प्याज वगैरह कुछ नहीं है, वो जैसे आप उसको लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट यूज किया जाता है, एंड करी लीव्स कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, एंड वो मसाले को पकाया जाता है, उसमें एक सावरिंग एजेंट छोड़ा जाता है जिसे हम अम्बोशी कहते हैं। अम्बोशी इज सन ड्राइड रॉ मैंगो, जो हम, बट हमारा रॉ मैंगो जो है वो आम के टुकड़े नहीं है, जो आम की गुठली रहती है ना, जो अचार वगैरह सब डल गया हो एंड गुठली बच जाती है, तो उसको काट के सॉल्ट करके सुखाया जाता है धूप में जब तक वो अच्छी खासी काली नहीं हो, और उसको फिर हम एक सारिंग एजेंट के तौर पे वो करी में डालते हैं। वाओ। फिर हम प्रॉन्स डालते हैं, तो एक मस्त डीप रेड कलर का प्रॉन्स बनता है, एंड दैट्स कॉल्ड अटौनी। ओके, अभी थोड़ा सा वाटरी वर्जन जिसमें टर्मरिक भी पड़े एंड थोड़े और हमारे मच्छी के मसाले पड़े, जिसमें कुछ लोग कभी धनिया डाल देते, कुछ लोग कभी जीरा भी डाल देते, उसको हम हल्दौनी कहते हैं। प्राइमरली बिकॉज आपको मिर्ची वगैरह के चलन के साथ टर्मरिक जो है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी रहती है, वो आमतौर पे आप करीज के तौर पे, मतलब एक राइस के ऊपर डालकर आप खा सकते हो, तो हल्दौनी होता है। कुछ लोग हाल ही में कोरमा बनाने लगे हैं, जिधर दे पुट अनियंस एंड टमेटोज का मिक्सचर इन एंड देन कुक सी फूड। अदरवाइज अगर आपने देखा होगा, मैंने टमाटर का नाम ना अटौनी में लिया ना हल्दौनी में लिया, तो हमारे यहाँ टमाटर का चलन उतना नहीं है, हम बहुत कम टमाटर यूज करते हैं। सो सी फूड के ये अलग अलग तरीके हैं। ऑब्वियसली सी फूड बिरयानी इज समथिंग दैट वी मेक। तो आमतौर पे लोगों को जब लगता है कि बिरयानी की बात करो तो मतलब सिर्फ मटन और चिकन होना चाहिए, बट आप हमारे घरों में आइए तो आपको सी फूड की बिरयानी खाने मिलेगी। तो जो एक तरीके का अफ्लुएंस, तो बिरयानी इज नॉट ट्रेडिशनल कोकनी मुस्लिम, बट ऑफ लेट विथ अफ्लुएंस एंड ऑल ये चलन कुछ सालों पहले से शुरू हो चुका है, जहाँ जो अफ्लुएंट कम्युनिटीज थी दे कुड अफोर्ड टू मेक बिरयानी, ऑब्वियसली लर्निंग फ्रॉम द कम्युनिटीज वेयर बिरयानी केम फ्रॉम, एंड स्टार्टेड प्रेजेंटिंग इट टू देयर गेस्ट और प्रिपेयरिंग इट फॉर स्पेशल ओकेजन। पर आमतौर पर नहीं बनती है ये बिरयानी, तो पॉम्फ्रेट की बिरयानी, क्योंकि पॉम्फ्रेट इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ फिश, तो एक तरीके का रुतबा आपका दिखता है जब आप ये डिश प्रेजेंट करते हो। फिर कुछ लोग प्रॉन्स की भी बिरयानी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ सी फूड की बिरयानी का बड़ा चलन है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग सी फूड। सो सी फूड इज लाइक आर डेली फेयर, मतलब वो हमारे खानों में होना जरूरी है। मटन एंड चिकन खाया जाता है, बट उस हद तक नहीं। मतलब पुराने जमाने में इट वाज रेलिगेटेड टू बीइंग स्पेशल ओकेजन डिशेस ओनली। तो आपका रोजमर्रे का खाना सी फूड, बिकॉज हम कोस्टल फोक है तो हमको आसानी से मिल जाता है, एंड मटन चिकन तभी बनता था जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, या कुछ स्पेशल मेहमान आने वाले हो, या शादी हो। तो फेस्टिवल का खाना, शादी का खाना, खास मेहमानों की दावतों के लिए ही चिकन मटन यूज होता था, वरना सी फूड के साथ राइस की सारी डिशेस वो डेली फेयर। एंड द थर्ड ingredient which I had mentioned before I got into the whole seafood discussion is coconut. Now, coconut is one of the key flavoring agents in all the cooking that we do. Why I say all the cooking? क्योंकि वो सिर्फ मीठे में नहीं या सिर्फ सेवरी डिश में नहीं, वो हमारी ज्यादातर चीजों में डाला जाता है। अब मैं उसका आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे डाला जाता है। तो हम शुरू करते हैं सेवरी से। आपको पता है जब चावल उबाले जाते हैं, नॉर्मली लोग चावल पानी में उबालते हैं। ओके, आप एक कोकनी मुस्लिम घर में आओ, थिन कोकोनट मिल्क में चावल उबाले जाते हैं, हम उसे कहते हैं नारली धान। ओके, सो इवन द राइस हैज फ्लेवर ऑफ कोकोनट, मतलब क्योंकि इतना उपज है इधर कम्युनिटी के पास कोकोनट का कि दे कैन यूज इट एक्सटेंसिवली इन कुकिंग। आई मीन इमेजिन ना, नारियल का दूध आप मतलब ऑब्वियसली थिन कोकोनट, आफ्टर द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट्स एंड सेकंड एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर स्वीट डिशेस एंड करीज एंड ऑल, जो बच जाता है उससे हम जो चावल में फाइनली डालते हैं, तो उससे नारियली धान, नारियली खिचड़ी, तो हमारी खिचड़ी में भी नारियल का दूध पड़ता है। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ विच वी यूज कोकोनट। फिर आप हमारी मेन डिशेस पर आओ। सो हमारी जो सी फूड करीज हैं, अटौनी नहीं बट दूसरी सी फूड करीज में हम कोकोनट यूज करते हैं, तो कोकोनट पेस्ट डलता है। फिर आप हमारी दाल, अगर नारियली दाल आप देखोगे तो क्या है, सफेद भोपले के साथ
मूंग की दाल बनाई जाती है, उसमें भी नारियल का दूध डाला जाता है। आप चने की मीठी दाल बनाते हो, उसमें भी नारियल का दूध डाला जाता है। आप ड्रम स्टिक्स, शेकटाच्या शेंगा हम बोलते हैं, आप ड्रम स्टिक्स की करी बनाते हो, उसमें भी नारियल का दूध डाला जाता है। आप स्टर फ्राई करते हो घेवड़ी, जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर बीन्स, आई थिंक इफ आई गॉट द इंग्लिश नेम करेक्ट। घेवड़ी की सब्जी जब फ्राई करते हैं तो उसमें फ्रेशली स्क्रेप कोकोनट डालते हैं, तो वो चाव वाओ। की सब्जी बोली जाती है। तो चाव मीन्स फ्रेशली स्क्रेप्ड कोकोनट। फिर अभी कुछ लोग क्या है, कुछ गांव ऐसे हैं जो सी से थोड़े अंदर है, तो उनके पास फ्रेश कोकोनट का उतना सप्लाई ना हो पुराने जमाने में, आज की बात नहीं कर रही हूँ, पुराने जमाने, क्योंकि ये क्विजीन इवॉल्व होते आई है ना, एंड आज भी कुछ प्रैक्टिस का चलन है। पुराने जमाने में उनके पास शायद उतना ना है, इसलिए इन लोगों ने खोपड़े को सुखाने का भी चलन किया है। तो जैसे सी फूड को सुखाया जाता है, वैसे खोपड़े को भी सुखाया जाता है, सुका खोबरा। सो खोबरा मीन्स कोकोनट, सुका खोबरा मतलब द ड्राई कोकोनट, एंड उसको वो लोग रोस्ट करते हैं टिल इट टर्न्स ब्लैक। सो भुजलेला सुका खोबरा टिल इट टर्न्स ब्लैक, एंड फिर उसको पीसते हैं और फिर उसको भाजियां बनाते हैं। जैसे बैंगन में डालते हैं, काल्या तेलाची भरलेली वांगी, उसका कलर एकदम ब्लैक रहता है वो डिश का, बिकॉज उसमें भुजलेला सुका खोबरा डाला हुआ है। एंड दैट इज वन वे ऑल्सो कंज्यूमिंग कोकोनट। तो वाओ। इतनी अलग अलग तरीके से सिर्फ सेवरी में यूज होता है। ये तो सिर्फ सेवरी यूज हुआ कोकोनट का। जब मैं डेजर्ट सेक्शन में जाऊंगी तब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि हम कोकोनट स्वीट डिशेस में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारी स्वीट डिशेस में भी कोकोनट पड़ता है। आई थिंक इवन जो डायलेक्ट है उसमें भी काफी ज्यादा महाराष्ट्रियन टच है, जिस यस, तरीके से डिशेस का नाम लिया जा रहा है। और जैसे यस, आपने कोकोनट का यूज बताया, कोकोनट का यूज महाराष्ट्रियन क्यूजीन में भी है, बट आई थिंक कोंकण, क्योंकि कोस्ट में, कोंकण इज द कोस्ट एंड आप जो कम्युनिटी है दैट इज सिचुएटेड एट द कोस्ट, सो वहां पे काफी हैवी यूज है कोकोनट का, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो लेट्स सी कि बाद में डेजर्ट सेक्शन में व्हाट वी डिस्कस। सो बिफोर दैट, what are the dishes which you typically eat in a day, from the breakfast to lunch and dinner? okay. So breakfast is usually having various egg preparations. See, आज की तारीख में तो आपके घरों में मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो आप सीरियल्स खाते हो, आप स्क्रैम्बल्ड एग्स खाते हो, आप ऑमलेट खाते हो। बट अगर आप थोड़े साल पीछे जाओ, जब ये सब चीजें नहीं थी और लोग ट्रेडिशनली खाते थे, तो सब्जियां बनती थी ब्रेकफास्ट के लिए, चावल की रोटी के साथ। अंडे की अलग अलग डिशेस बनती थी। तो एक बड़ी दिलचस्प डिश है हमारे क्विजीन में, हम उसे कहते हैं ससरिंगा। ओके, ससरिंगा में क्या होता है, ससरिंगा में हम अंडा मीठे तरीके से बनाते हैं। तो अनियंस को Wow. कैरमलाइज किया जाता है, एंड उसमें फिर शक्कर, कोकोनट मिल्क वगैरह, सिनेमन, कार्डेमम डाला जाता है, एंड फिर उसमें अंडे छोड़े जाते हैं, उसको और डीपली कामेलाइज करके एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो नेकेड आई को वो एक अंडे का कोरमा लगेगा, बट जब आप खाने जाओगे ना तो मीठा टेस्ट आएगा। सो वो चावल की रोटी के साथ खाया जाता है, एंड बिकॉज वो मीठा है एंड आपको वो स्वीटनेस थोड़ा ब्रेक करना रहता है, तो आप लाल मिर्ची की हम चटनी पिसते हैं सिलबट्टे पर, उसको हम उसके साथ पेयर करते हैं खाने के लिए। तो हमारे ब्रेकफास्ट में भी हम स्वीट डिशेस खाते हैं, एंड रोटी के साथ भी खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। आज की तारीख में ना थोड़ा मॉडर्न टच, आप वो ही रोटी के साथ थोड़ा इजी वाला अंडे का डिश बना देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ससिंगा बनाने के लिए एक मेहनत का काम है, क्योंकि आपको स्लोली वो अनियंस को कार्मेलाइज करना रहता है टिल इट रीचेस अ डेंस कार्मेलाइजेशन। आज की तारीख में आप क्विकली जो इजिली बन जाता है अंडा या सब्जी, वो बनाकर एक मीठा की डिश। तो कितने लोग रताले की मिठाई, रताला मीन रताल्याची शाक हम बोलते हैं, मतलब स्वीट पोटेटो की मिठाई दूध में बनाते हैं। कितने लोग जो हम काचीची शाक बोलते हैं, मतलब जो दूधी की मिठाई। तो हमारे यहाँ मिठाई का बड़ा चलन है नाश्ते में। तो आप अंडे के साथ या खास करके अंडे के साथ एक मीठे की जोड़ी तो होती ही है। भले ही आप Wow. अगर सब्जी रोटी खा रहे हो तो आपको मीठा नहीं लगता, बट अगर आप अंडा खा रहे हो ना, तो चलन है कि अंडे के साथ मीठा होना चाहिए। वो मीठा हो सकता है, या तो अगर आप अंडा ही मीठा बना रहे हो ससिंगा, तो फिर मीठे की जरूरत नहीं। बट अगर आपने अंडा सेवरी स्टाइल में बनाया है, एक मसाले का अंडा या मसाल्याचे कवटी, कवटी मीन्स अंडा, सो मसाल्याची कवटी मतलब मसाले के अंडे अगर बनाए हैं,
या ऑमलेट खा रहे हो आप रोटी के साथ, तो आपके साथ एक ट्रेडिशनल मीठी डिश होगी, जैसे आप रताले की शाक या काची की शाक, या आज मेरे पास मुरब्बा है, मैं आपको मुरब्बा बताती हूँ। तो हम थोड़ा सा मुरब्बा भी बना, तो मुरब्बा क्या है, ये आम का जो सीजन रहता है ना, तब हम आम कैरी को काट कर शुगर सिरप में जाफरान के साथ पकाते हैं, एंड उसको हम फिर यूज करते हैं साल भर एज अ, यू कैन कॉल इट अ प्रिजर्व, फूड प्रिजर्व। तो मैं वो भी बता देती हूँ अभी आपको कैसे दिखता है। Look at the ये color. देखिए, दिस इज, ये पूरा जाफरान का कलर है। तो शुगर सिरप को जाफरान, होल कार्डेमम, होल सिनेमन से फ्लेवर करके ये मैंगो पीसेस को पकाया जाता है जब तक वो एकदम ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए। ये पूरा जाफरान का कलर है। तो Wow. इसको भी आप नाश्ते में खाते हैं चावल की रोटी के साथ। सैफरन हैज बीन कमिंग टू द कोस्ट बिकॉज ट्रेड वगैरह से भी आते रहा है, एंड प्लस सैफरन एज एन इंडिकेशन ऑफ अफ्लुएंस एज वेल। सो अगर आप Hmm. देखोगे तो सैफरन का यूज इज लिमिटेड, जैसे सांदन में, स्वीट डिशेस में पाया जाता है, एंड सैफरन वाज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ द अफ्लुएंस ऑफ द हाउस, तो इसलिए इट गॉट मेड इनटू सर्टेन स्पेसिफिक डिशेस। Hmm. आमतौर पे आप उसको देखोगे नहीं, और अगर सैफरन पड़ रहा है मतलब एक बंदा अपना रुतबा बता रहा है, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था। तो Right. नाश्ते नाश्ते में तो ये हो गया, एक अंदाजा दे दिया। नाश्ते में पास्ता भी बनते हैं, जैसे सरौले जो हम खाते हैं, कतरी खाते हैं। मैंने सुकरी की बात की थी, जो पोहे एक तरीके से हम मीठे तौर पे बनाते हैं। तो या तो हम सिर्फ वो खाते हैं, या तो हम रोटी के साथ ये अंडे और मीठे का चलन करते हैं। तो ये हमारा नाश्ता हुआ। अभी ऑब्वियसली मॉडर्न डे प्रैक्टिस में, डोंट होल्ड मी अगेंस्ट इट, बट अभी काफी मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो लोग सीरियल्स, ऑमलेट, सॉसेजेस जो खाना है खा सकते हैं। बट ये एक ट्रेडिशनल आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, रीजनल कुकिंग का। अब आए खाने के तौर पे लंच में, तो लंच में या तो आप चावल की रोटी के साथ सब्जी और मछली का जो भी प्रेपरेशन है वो बनता है, या तो राइस के साथ वही सी फूड और सब्जी का चलन। एंड अगर आपको चाहिए तो शाम को भी आप रोटी बनाते हो, या आप चावल बना सकते हो। सो चावल की रोटी, चावल, भाजी एंड सी फूड, इस तरह से दिन का खाना होता है। So, in a general scenario, seafood, vegetable, and any thing, either rice या राइस की चपाती में ये सारे खाने निकल जाते थे हमारे। नाश्ते का एक तरीके से स्नैक्स का बहुत चलन, जो बहुत स्वीट हैवी है, वो मैं जब स्वीट्स की बात करूंगी तब आपको बताऊंगी। बट आर डेली फूड इज वेरी सिंपल। इनफैक्ट पुराने जमाने में यहाँ तक कि मॉम में लोग कहते हैं कि नानियां, दादियां जब दोपहर का खाना बनना रहता ना, उस टाइम पे ही वो लोग फ्रेश मसाले पीसते थे। मतलब स्पाइसेस का चलन नहीं था। आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेके उनको सिलबट्टे पे पीस कर तब जाके सब्जियां और सी फूड करीज बनती थी। बहरहाल आज के तारीख में हम घरों में इतना फ्रेश ग्राइंडिंग नहीं करते हैं ना, अभी तो पाउडर्स भी आ गई हैं, तो उनका भी भरपूर इस्तेमाल होता है। सो Wow. बट ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इज द वे ऑफ कुकिंग। तो हमारी स्पाइसेस अगर आप पूछेंगे कि रोज क्या स्पाइसेस पड़ती हैं हमारे खानों में, तो मिर्ची, लाल मिर्चियों का बहुत चलन है। हरी मिर्चियां अगर आपके घर के बैकयार्ड में होती थी तो वो भी यूज में आ जाती थी। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक उतना नहीं इस्तेमाल होता है। अदरक अगर हुआ तो चिकन मटन में ज्यादा होता था, बट सी फूड में उसका उतना इस्तेमाल नहीं था। राई का भी इस्तेमाल बहुत कम है हमारे खाने में। हमारे खाने में अगर आप देखेंगे तो मिर्ची, हल्दी, लहसुन are very key ingredients when it comes to the seafood preparations. उसके बाद कुछ कुछ डिशेस में जीरा, धनिया पड़ता है, एंड कई लोग उनके मच्छी के मसाले में थोड़ा बहुत राई पीसते हैं, Hmm. बट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम हाउस टू हाउस। बट ऐसा प्रेवलेंट यूज नहीं है राई का, जैसे बोला जाता है।
एंड एक और सेवरी स्पाइस है जो वेरी यूनिकली यूज बाय अस, उसका मैंने कश्मीरी क्विजीन में इस्तेमाल देखा है, सौंफ। तो हम सौंफ का पाउडर बहुत यूज करते हैं, या पिसी हुई सौंफ बहुत यूज करते हैं हमारे डिशेस बनाने में। तो हमारे वो नॉनवेज डिशेस में भी पड़ती है, एंड हमारे वो सेवरी सॉरी वेजिटेरियन डिशेस में भी पड़ती है। तो हमारे यहाँ सौंफ का चलन बहुत है। इनफैक्ट हमारा जो एक ब्रॉथ है, जो अल्नी पानी हम बोलते हैं, जो एक बोन ब्रॉथ है जो चिकन के साथ बनता है, तो या तो अगर आप रिकवर कर रहे हो कोई इलनेस से और आप वीकनेस से सफर कर रहे हो, तो पेशेंट्स को वो दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही पौष्टिक होता है। प्रेग्नेंट लेडीज को वो दिया जाता है क्योंकि वो बहुत पौष्टिक है। तो उसमें सौंफ, घी एंड हल्का सा गरम मसाला पड़ता है वो वार्मथ के लिए, तो वो पूरा फ्लेवर होता है सौंफ से। तो सौंफ का चलन बहुत सारी कम्युनिटीज नहीं करती हैं। इट्स अ वेरी यूनिक इंग्रेडिएंट टू यूज फॉर फ्लेवरिंग करीज एंड ऑल, सौंफ जो हम बोलते हैं। फिर हम उसे सब्जियों में भी यूज करते हैं, जैसे जो शेकटाचे शेंगाचा सालना मैं बोल रही थी, ड्रमस्टिक्स की करी, उसमें द की फ्लेवरिंग एजेंट्स आर कोकोनट एंड सौंफ दैट आर देयर। तो हमारा एक वेरी की स्पाइस इज सौंफ। अब आप आइए मीठे की तरफ, तो मीठे में 3 की इंग्रेडिएंट्स है। जाफरान आपने सुन लिया है, ग्रीन कार्डेमम विच इज ग्रीन हरी इलायची, एंड सिनेमन दालचीनी। तो ये इनका चलन बहुत है। तो ये हमारे कुछ रोज के स्पाइसेस हो जाते हैं, मीठे और यू नो स्वीट, मीठा और सेवरी डिशेस मिला के। सो ये स्पाइसेस का यूज हमारी क्विजीन में है। अगर आप देखोगे हमारे गरम मसाले भी बहुत सिंपल रहते हैं। हमारा गरम मसाला 3 से 4 स्पाइसेस का मिश्रण है। अनलाइक नॉर्थ का या महाराष्ट्र का जो गोड़ा मसाला बोला जाता है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। बट हमारे यहाँ हमारा गरम मसाला 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स का रहता है। मेन इंग्रेडिएंट्स सिनेमन, ग्रीन कार्डेमम और क्लव्स, मतलब लौंग, दालचीनी और इलायची का ये बनता है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्विकली कैसे दिखता है उसका कलर, ठीक है। तो ये हमारा गरम मसाला है। अभी इस गरम मसाले में हमने दालचीनी, हरी इलायची और लौंग डाली है। तो ये कुछ ऐसे वाओ। दिखता है। ये कुछ ऐसे 8 से 10 मसालों का मिश्रण नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग इसमें पेपर डालते हैं, कुछ लोग इसमें जायफल डालते हैं, तो उस हिसाब से वो घर से घर वेरी होता है। बट दीज आर द 3 कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस गरम मसाला। वेरी सिंपल इट इज डन। वेरी और मैं सिंपल, आपको बोल यस। रही हूँ, हाँ, और मैं आपको बोल रही थी हमारे जो की इंग्रेडिएंट्स है जो पीसे जाते थे सिलबट्टे पर, तो ये चिली है, ड्राइड रेड चिलीज। तो इनको गर्म पानी में भिगो के रखा जाता है पीसने के पहले। हल्दी, ओके, एंड लहसुन, तो ये बहुत पीसे जाते हैं। तो दीज आर आर एवरीडे कुकिंग स्पाइसेस। अभी मैं आपको बोल रही थी सौंफ का चलन बहुत है ना, तो हम सौंफ को बहुत पीसते हैं और उसका पाउडर भी बहुत यूज करते हैं हमारे डिशेस में। तो ये एक तरीके का यूनिकनेस है हमारी कुकिंग में, जो है सौंफ का इस्तेमाल। एंड अगर हम मसालों की बात पर है, तो ये तरीके की मतलब पाउडर है जो इवन महाराष्ट्रियंस बहुत यूज करते हैं। इसको हम तिलकुट कहते हैं, ओके। ये क्या है और ये इतनी कोर्स क्यों दिख रही है आपको? तो गांव में ना मुझे इसका मोटर एंड पेसिल अंग्रेजी में अगर बोले, बट वो जो बड़े वाले रहते हैं वुडन वाले, गांव में जो घरों में हाथों से कूटा जाता है, तो उसमें ये रेड चिलीज, लहसुन और काले तिल को कूटा जाता है। तो ये उसका मिश्रण है, तो इसको हम तिलकुट कहते हैं। तो उखली मुसल हम बोलते हैं। तो ये वुडन बैम्बूज रहते हैं ना, और वुडन पॉट्स, उसमें औरतें खड़े रहकर पूरा दिन ऐसे मसालों की कुटाई करती है। उसमें ये आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंग्लिश टर्म फॉर इट, बट उसमें ये कूटा हुआ है। तो देखिए उसका टेक्सचर भी देखिए कैसे, ऐसा कोर्स है, मशीन ग्राउंड नहीं है ये। तो इसको हम प्याज पर ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। हम इसको ड्रम स्टिक को उबाल कर उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाते हैं। तो ये सैलेड्स पर भी हमारी स्प्रिंकल होता है। हम इसको दाल चावल के साथ भी ऐसे ही खाते हैं, तो इसको हम तिलकुट बोलते हैं। ये महाराष्ट्रियन घरों में भी बहुत होता है। सो
This is some way in which spices are brought to use in our homes. Wow. This was the daily routine and the spices Mhm. and what is usually happening in household. But when we're talking about the festivals, especially, not to Mhm. mention Eid is there, then weddings are there, and then other Mhm. small festivals are there, which are the community festivals. So, what is happening at that time in food, especially? Sure. So एक बार बिफोर वी मूव ऑन टू स्पेशल डेज ना, सावरिंग एजेंट्स का मुझे आपको बात करनी होगी, क्योंकि वो भी एकदम कम्युनिटी स्पेसिफिक है हमारे यहाँ. आपको नॉर्थ में ठीक है, एंड लेट्स टॉक साउथ में वो अबाउट इट नहीं मिले. पहले. या हाँ, फिर हम ईद पर जाते, तो मैंने वो भी रेडी किए हैं इधर, सो बिकॉज आई उनका जस्ट भी. हाँ, I'll just हाँ, ask the question and then you can go on हाँ, about that. या. Huh. So, like in Maharashtra, tamarind is used, in Goa, there's a lot of use of kokum, and so is your community also influenced by these ingredients in terms of souring agents? Yes, absolutely. In fact, we use 3 to 4 different souring agents. Obviously, साथ में नहीं, अपने तौर पे इंडिविजुअली यूज किए जाते हैं. तो मैं आपको उसका भी ग्लिम्स बताती हूँ वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि वो भी थोड़े अलग अलग दिखने वाले. तो एक मिनट, मैं कैमरा स्विच करती हूँ. ओके, आपको दिख रहा है? हाँ. सो इमली, हाँ, जिनके Mm-hmm. घरों में इमली के झाड़ हुआ करते थे, वो लोग इमली का इस्तेमाल कर सकते थे, एंड चटनी के लिए खास तौर पे यूज होती थी. कुछ लोग सी फूड करी में भी एक इमली का टुकड़ा छोड़ देते थे. बट ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना दी अदर टू आर. सो कोकम, ये सनड्राई कोकम है, इसलिए देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है, उसका स्किन रह गया है. तो ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ सी फूड करीज में. फिर इवन इन दाल्स, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा खट्टा खाने का चलन है, तो इसलिए हमको सी फूड करी में, दालों में खटाई डालना बड़ा अच्छा लगता है. तो ये कोकम उसमें पड़ता है. ये कोकम से हम एक कड़ी भी बनाते हैं, वो कोकम की कड़ी जो हम बोलते हैं. आपने सोल कड़ी सुनी होगी. Soul curry is जी. quite famous in Malwani food and Maharashtrian food. हम भी कोकम का यूज करते हैं हमारे तरह की कड़ी बनाने विद कोकोनट मिल्क एंड ऑल. तो प्लस इट्स यूज्ड एज अ रेगुलर सावरिंग एजेंट. और कोकम का शरबत तो खैर बनता ही है कोस्ट में. दूसरा है ये अम्बोशी, जो मैं बोल रही थी ना, अटौनी के लिए जो सावरिंग एजेंट Hmm. हम यूज कर रहे थे. तो ये देखिए, ये आम की गुठली है जिसको नमक लगाकर सन ड्राई किया हुआ. इतना सन ड्राई किया हुआ, देखिए वो काली हो गई है धूप में सूख Wow. सूख कर. तो दिस इज अ की सावरिंग एजेंट जो हमारी स्पेशलिटी है. एंड ये सी फूड करीज में पड़ता है, तो एक अलग तरीके की खटाई आती है सी फूड करीज में. सो जो ये आम की जो गुठली खट्टी करते हैं, क्या ये सूखे आम जो हमारा बाहर जिसका अमचूर भी बनता है, सूखे आम से भी ज्यादा इसका खटाई होती है या उससे हल्का कम खट्टा होता है? नहीं, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये जनरली क्या चलन रहने का कि आप अचार वगैरह के लिए टेरी यूज कर देते हो, तो बीच के जो वो बाठे रह जाते थे, उनको आप सॉल्ट करके सुखाते हम्म. थे, तो उसका फ्लेवर और स्ट्रांग हो जाता था. तो अगर आप इसको डालोगे तो आपको इंस्टेंटली वो खटाई लगेगी सालन में. वाओ, ब्यूटीफुल. या तो दीज आर सारिंग एजेंट्स. कुछ जगहों पर ना करौंदे भी डालते हैं, एक तरह की वाइल्ड बेरीज है, हम्म. करौंदा बोलते हैं. कुछ लोग कुछ सी फूड करीज में वो भी डालते हैं अगर उनके यहाँ उसकी उपज है तो. बट प्राइमरीली दीज आर आवर सावरिंग एजेंट्स, अम्बोशी, कोकम एंड इमली. हाँ. एंड मीठे की बात पे आएंगे ना, तो मैं बताऊंगी कि हम शक्कर और गुड़ दोनों इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम मीठे का चलन का बात करेंगे तब हम उस पे डिटेल में जाएंगे. सो दिस इज द रेगुलर हाउस होल्ड स्टफ विच वी वर टॉकिंग अबाउट, जो दिन भर घर में बन रहा है खाना. अभी अगर हम लोग फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, स्पेशली ईद, अगर हम इन सब की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो खाना है उसका कैसा चलन रहता है? ओके. सो फेस्टिवल्स का अगर आप बात करेंगे तो
Should I start with festivals या शादी किससे शुरू करूं? Special occasions. Anything. Okay, so let's begin with festivals first. So ईद का जो खाना है, everybody thinks के ईद मतलब sorry, one second. ईद का जो खाना है तो एवरीबडी थिंक ईद मतलब शिरखुरमा, सेवइयाँ और बिरयानी। बट हमारे यहाँ कोकनी मुस्लिम में थोड़ा सा चलन अलग है ईद का। तो मैंने आपको सांदन बताया था थोड़ी देर पहले। तो हमारी ट्रेडिशनल ईद डिश इज एक्चुअली सांदन और मासाचा सालना, मतलब मटन की करी और वो सांदन हमारा ट्रेडिशनल ईद डिश है। और मीठे में हम तलेली शेव जो है, एंड सिर्फ एक मीठा नहीं बनता है, हमारे घरों में बहुत सारे मीठे बनते हैं ईद के दिन। सो कुछ लोग दूधी की मिठाई बनाते हैं, कुछ लोग तलेली शेव जो सिवैयाँ हैं बट दूध में नहीं, तलकर जो घी में बनाई जाती है वो बनाते हैं। कुछ लोग रताले की मिठाई बनाते हैं। तो ऐसे 3-4 चीजें बनती है, सिर्फ एक नहीं बनता। आज का मॉडर्न टेक ये है कि कितने लोग शिरखुरमा बनाते हैं, सेव बनाते हैं, एंड एक खैराल एक दो मीठे बनाते हैं। बट ट्रेडिशनली फ्रॉम द नॉर्थ टू आवर ईद इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम बिरयानी नहीं बनाते हैं ट्रेडिशनली। आज आप जाओगे तो आज मिलेगी आपको बिरयानी कोकनी मुस्लिम घरों में। अदरवाइज सांदन, मासाचा सालना, ये 3-4 मीठे। मीठे में भी जो सेव है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है, दूध में नहीं बनाई जाती। हमारा शिरखुरमा अलग बनता है जो सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रहता है, हल्की सी उसमें सेवइयाँ रहती है, खीर का टेक्सचर बिल्कुल नहीं रहता है उसका। एंड ये रताले की शाक, दूधी की शाक, ये सब मिलकर और सेव मिलकर ऐसे 3-4 मिठाइयाँ होती हैं ईद के दिन। सो ये हमारा हुआ Wow. ईद का खाना। आज की तारीख में आपको बिरयानियां मिल जाएंगी कोकनी मुस्लिम घरों में, बट ट्रेडिशनली बिरयानी इज नॉट कोकनी मुस्लिम ईद फेयर, दैट इज देयर। फिर आप आओ मुहर्रम पर। मुहर्रम में बहुत ही अलग तरीके का खाना होता है, बिकॉज इट्स अ मंथ फॉर प्रेइंग एंड मोर्निंग। तो तो हफ्ता रहता है मुहर्रम की 10वीं तारीख तक, आशूरे तक। बहुत ही सिंपल खाना खाया जाता है, दाल चावल, दारची भाजी जो हम बोलते हैं, मतलब एमरैंथ जो है उसकी उसका ब्रॉथ बनता है, मतलब मसालों में एकदम फीका रहता है वो खाना। फिर जो हम माठा बोलते हैं या जो ताक बोलते हैं, मतलब कर्ड का थिन बटर मिल्क जैसा बनाया हुआ रहता है। तो बहुत ही सीधा साधा खाना खाया जाता है, बिकॉज इट्स अ मंथ विच इज डेडिकेटेड टू प्रेइंग एंड मोर्निंग। फिर Right. उसमें थोड़ा सा मीठे का और थोड़ा सा आशूरे के दिन का चलन ये है कि उस दिन दो अलग डिशेज स्पेशली बनती है, वो है खिचड़ा। ओके, तो हमारे खिचड़े में थोड़ा सा चावल भी पड़ता है जब हम खिचड़ा बनाते हैं। एंड चोंगे, मीठी पूरियां रहती है, एक पर्टिकुलर पार्ट पे बनाई जाती है, क्योंकि उस पे जब वो ठोकते हैं ना तो एक शेप आता है। तो वो मुहर्रम का हमारा चलन है। तो ईद एंड मुहर्रम, सो बाकी के मुस्लिम कम्युनिटीज जैसे हमारी भी 2 ईद और मुहर्रम है जो हमारे मेन फेस्टिवल्स है, जिन पर ये सब चीजें बनती हैं। बहुत ही सीधे साधे तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड खाने एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इसके साथ जो उसका चलन है फेस्टिवल का, उस हिसाब से वो बनाए जाते हैं। सो ये ईद और मुहर्रम का खाना हुआ। अब आए शादियों पर। तो हमारे शादियों का भी एक प्री वेडिंग, तो जो जब ये जाते हैं, थाल जाते हैं होने वाली दुल्हन के घर पे, तो उसके साथ भी मीठे जाते हैं। फिर दूल्हे को भी जब चीजें भेजी जाती है तो उसमें भी मीठा जाता है, तो उसमें बहुत सारे स्नैक्स, स्वीट स्नैक्स वगैरह बनते हैं। तो शादियों का जैसे मैं बोल रही थी कि उन बरी के साथ जो प्री वेडिंग फंक्शंस में जब थाल जाते थे एक घर से दूसरे घर, तो बहुत सारे स्वीट स्नैक्स बनते थे। पुराने जमाने में क्या होता था, दुकानें नहीं थी,
तो आपके फैमिली वाले, आपके आस पड़ोस वाले बनाकर लाते थे ताकि आप फिर उनको भरकर भेज सको अपने समधियों के घर पे। तो उसमें बहुत सारी स्वीट डिशेज पड़ती थी, शक्करपारे, खजूरी, गिलाफी, खजूरी, सवाचे पुरियो। तो वो बहुत सारी डिशेस थी जो जाती थी। तो हमारे शक्करपारे वो डीप फ्राई किए हुए तले हुए शक्करपारे नहीं होते थे। हमारे सूजी को मस्त रोस्ट करके उसको थाले में बिठा के ऐसे टुकड़े निकलते थे, काजू कतली जैसे, वैसे उनको शक्करपारे होते। खजूरी अ, हमारी एक डीप फ्राइड डो पेस्ट्री है, जो अलग अलग शेप्स में काटी जाती थी। फिर सवाचे फूले जो महाराष्ट्र लोग जनरली करंजी कहते हैं, जो एक डो में कोकोनट की फिलिंग या रवे की फिलिंग डाली जाती है मीठी, वो भेजी जाती थी बरी में। तो ऐसे करके बहुत सारे मीठी चीजें बनती थी जो वो बरी में डालकर ड्यूरिंग प्री वेडिंग फंक्शंस भेजी जाती थी। सो एंड देन ऑन द वेडिंग डे ऑब्वियसली हमारा खाना अगेन वाज वेरी सिंपल इन ओल्डन टाइम्स। आज की तारीख में तो सारे केटरर्स लेकर लोगों ने कबाब, बिरयानी सब सब करना शुरू किया, बट अगर आप ओल्डन टाइम्स की बात करें तो तभी धान शिकोरी, so धान इज राइस, शिकोरी इज मटन, मटन करी, एंड जर्दा जो मीठे चावल रहते हैं, दैट वाज आवर ट्रेडिशनल वेडिंग फेयर। तो मैं क्यों आपको बार बार ये बोलती हूँ ओल्डन टाइम्स एंड करंट टाइम्स, ओल्डन टाइम्स एंड करंट टाइम्स, क्योंकि हम आज जिस मॉडर्न जमाने में रहते हैं उससे हमको कई चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो अगर आज आप कोई कोकनी मुस्लिम शादी में जाओगे तो शायद आपको ये खाने देखने नहीं मिले, आपको एक राइट। केटरर से बिरयानी देखने मिले, कबाब देखने मिले, कटलेट देखने मिले। बट अगर आप एक पुराने स्टाइल की शादी में जाओ, या कुछ गाँव में आज भी ऐसी शादी होती है जहाँ आपको ये सिर्फ ये ट्रेडिशनल 3-4 डिशेस का खाना मिलेगा देखने। तो धान शिकोरी, जर्दा, कुछ घरों में क्या होता था, पपड़ भी खास डाले जाते थे कि शादी के, इससे वो पपड़ भी बनाए और खाने को डाले। बिकॉज गांव में कैसे होता था पहले, आपके पास केटरर नहीं थे, आपके पास सर्वेंट्स भी उतने नहीं थे कि पूरे गांव का खाना आप बनाओ। और पुरानी शादियों में कैसा था, पूरा गांव उठ के आता था। यहाँ नहीं है कि आपने इस घर में इनविटेशन दिया तो ये घर के लोग आएंगे आपके यहाँ, वो पूरे गांव को दावत होती थी। तो आप उसमें कितने डिशेस बनाओगे और कैसे बनाओगे, और आपके ही घर वाले और आपके ही पड़ोसी आपकी मदद करने आते थे वो शादी का खाना बनाने। तो उस इससे फिर ये सब प्रथाएं आई और ये सब डिशेस आई। So there is a reason why that it was only a mutton curry and a sweet rice, or there was a reason why these sweet snacks and all were made. Because उनको बनाने वाले और उनको बनाने की प्रैक्टिस कहाँ से पैदा हुई। और आज की तारीख में तो आप कोई स्वीट शॉप में ऑर्डर कर दो और मिठाइयों के डब्बे भेज दो, आप कोई केटरर को ऑर्डर दे दो और कर दो, तो इसलिए आप इतने 8 से 10 चीजें बना सकते हो। बट तभी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तौर से ये सब चीजें सोची गई थी, वेदर इट वाज for festivals or special occasions or weddings. So ये चलन था शादियों का और फेस्टिवल्स का। शादी के तो हमारे यहाँ शादी के बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग रस्म होती है। तो मैंने आपको प्री वेडिंग फंक्शन बोला जहाँ स्वीट स्नैक्स पैक करके दिए जाते थे। शादी के दिन का मैंने आपको खाना बताया जो मटन करी, राइस और जर्दा होता था, जो एक तरीके के मीठे चावल थे, जाफरान ड्राई फ्रूट डाल के बने हुए। अब शादी के बाद क्या होता था, जैसे पग फेरे होते हैं वैसे हमारे यहाँ एक रस्म है बोली जाती है पचमांग। ओके, तो उसमें लड़की अपने मायके आती है अपने शौहर के साथ। ओके, तो जब वो आती है तो 5 दिन के लिए अगर वो रहती है तो उसको पचमांग कहते हैं। कुछ लोग 10 दिन के लिए रहते हैं, उसको दामांग कहते हैं। अगर अगेन आज के इसमें वो चलन नहीं रहा है, बट पुराने जमाने में ये होता था। तो अब जवान आपका घर पे आया है तो आप उसको तरह तरह के नाश्ते वगैरह बनाकर खिलवाओगे। हाँ, तो आपने उसके लिए तरह तरह के मीठे डिशेस, तो मैंने आपको कहा था ससरिंगा, जो एक तरीके का एग स्वीट डिश है, वो बनता था। फिर सरवले बनाए जाते थे, मतलब हर तरह से उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी।
एक चीज जो उसकी मेहमान नवाजी में रखी जाती थी वो थे सांदन। तो मैंने आपको सांदन जो बताया वो किसी व्हाइट कलर के सेवरी वर्जन थे। जब एक जवाई घर पे आता था तो वो जाफरान के साथ बनकर उनमें ड्राई फ्रूट डालकर उसे पेश किया जाता था खाने के लिए। क्यों पेश किया जाता था? तो उसे बनाना एक लेबोरियस टास्क है। मैंने आपको एक सेकंड में बता दिया कि ये स्टीम्ड राइस केक है एंड ये चावल के रवे से बनता है, पर वो उतना आसान नहीं है। अगर आप उसकी प्रथा समझोगे तो उसमें आपको चावल धोने हैं, सुखाने हैं, वो चावल को आपको पीसना है, वो पीसने के बाद आपको उसको छानना है ताकि दो कंसिस्टेंसी में चावल आए, फिर उसको आपको फर्मेंट करना है, वो फर्मेंटेशन को रात भर रखना है, फिर दूसरे दिन स्टीम करना है। तो इट्स अ लेबोरियस टास्क। तो आप अपने दामाद को ये बता रहे हो कि हमने इतनी मेहनत की है आपकी मेहमान नवाजी के लिए कि हमने ये डिश प्रेजेंट की। प्लस उसका डोयल इंपॉर्टेंस ये है कि ये सब चीजों को सांधना, मतलब टू ब्रिंग टुगेदर। सो जैसे ही इज द पर्सन बॉट टुगेदर टू फैमिलीज बाय दिस मैरिज, ऐसा बोला जाता था पुराने जमाने में। तो इसलिए भी उसको सांदन दिए जाते थे। तो स्वीट सांदन आर सर्व्ड टू द जमाई व्हेन ही कम्स होम फॉर दैट रिचुअल ऑफ पचमा। पुराने जमाने में, आज के जमाने में बहुत से घरों में ये प्रथा नहीं होती। और पचमाम का जो लास्ट दिन रहता है, अभी आपका जावई, आपके जावई हम बोलते हैं, जमाई हिंदी में बोलते हैं, अभी आपका जमाई आपकी बेटी के साथ आपके घर पे आया है ये प्रथा के लिए। अब 5वां दिन हो गया, ये आप उसको याद तो नहीं दिला सकते हो, ना उसको मुंह से बोल सकते हो कि भैया 5 दिन हो गया, अब जाने का टाइम हो गया। बहुत रूड बोला जाता है। तो आप उसको मुंह से बोल नहीं सकते हो कि आपके जाने का टाइम हो गया है तो चलो, बिकॉज रूड लगता है ना जमाई को ये बोलना। तो वो भी हम एक डिश के तौर पे कम्युनिकेट करते थे। तो उस दिन नाश्ते में, जो 5वां दिन है, उस दिन नाश्ते में ये डिश बनती है घावने। ओके, घावने इज आवर राइस पैनकेक्स। ओके, तो राइस एंड ड्राई फ्रूट पैनकेक्स। तो चावल का आटा, अंडा, गुड़, कोकोनट मिल्क, ड्राई फ्रूट्स डाल के 7 लेयर्स में वो पैनकेक बनता है। ओके, एंड वो पैनकेक्स का सर्व होना एक जमाई को इंडिकेशन है कि ये लास्ट दिन है पचमांका है, आपके जाने का वक्त आ गया है। तो इट यूज्ड टू बी डब्ड एज पाठवनी से घावने। पाठवनी मीन्स सेंड ऑफ इन आवर लैंग्वेज। ओके, तो इसलिए उसको पाठवनी से घावने। तो आप रूड भी नहीं हो कि आपने मुंह से आपके दामाद को बोला कि पचमान की रस्म पूरी होने आई, बट वो डिश प्रेजेंट होती थी। उसका बोलने का मतलब ये है कि ये लास्ट दिन है, इसलिए ये डिश प्रेजेंट हो रही है। तो ये मतलब पुराने जमाने के लोगों में ये सब चीजें होती थी। आज के जमाने में हम तो उनमें उन्हें जनरल ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, बट ये इम्पोर्टेंस होता था सारी डिशेस का इन द ओल्डन टाइम्स। It's So that actually is just a beautiful to small see, game. you know. Uh, Hmm. so this is just a small glimpse of how traditionally weddings and things around weddings worked in the olden days. अभी तो आई डोंट थिंक इतना इन सब प्रैक्टिसेस का प्रेवलेंस है। घरों में होता है बट नॉट टू दैट elaborate extent like how it used to happen in olden days. So this is beautiful because food is acting as a medium of communication, that it's saving relationships also. It's bringing True, people true, together. That is actually beautiful. So you have been mentioning saravle quite a lot. So you said that it's a kind of pasta which is made from rice. So can we talk about saravle now? Can you explain what is it exactly, and what is its cultural significance in Konkani sure. Muslim cuisine? मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हम एक राइस डोमिनेंट क्विजीन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीट नहीं यूज करते। हम वीट यूज करते हैं बट इट इज यूज्ड फॉर स्पेशलिटी डिशेस। स्पेशलिटी डिशेस मतलब खास मीठों के लिए, खास डिशेस के लिए। तो उसमें से एक तरीके का जो चलन है वीट का, वो है पास्ता बनाने हमारी कम्युनिटी में। सो हमारी कम्युनिटी में 2-3 तरह के अलग अलग पास्ताज बनते हैं। अभी पास्ता अगेन आई एम सेइंग बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू फॉर पीपल टू विजुअलाइज, इसलिए मैंने पास्ता कहा है। एंड मैं आपको वो 3 वैरायटीज भी बताऊंगी आज कि वो पास्ता क्या है, देन आई टेल यू हाउ दे आर मेड। तो उसमें से जो हमारे कम्युनिटी में a lot of people, or you can say make it, or it's popular is saravle. They're ring shaped pasta. So I'll show you how these pasta look. So these are all pastas? Yes, these are our community's pasta. Wow. So ये saravle है.
ओके सो यू सी दे आर फाइन रिंग शेप पास्तास ओके। तो उनको ना हम दो व्हीट तो क्या होता है जो व्हीट है ना व्हीट फ्लावर उसको छलनी से छान छान के एकदम फाइन बनाया जाता है टिल इट रीचेस लाइक मैदा लाइक कंसिस्टेंसी। एंड देन उसका डो बना के वो डो के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे जाते हैं। एंड वो स्ट्रिप्स काट कर फिर उनको है ना ये ऐसे लकड़ियों पर रोल किया जाता है और फिर उनको सन ड्राई किया जाता है। तो वो गिर जाते हैं लकड़ियों पर से सन ड्राई होके और फिर ये देखिए ये ऐसे पास्ता बनते हैं। इसी का फाइन दिया Wow. बहुत मेहनत का काम है इसलिए काफी सारे लोग इनको बनाते भी नहीं है। अभी ये गांव में एक एक दो दो घर रहते हैं जहाँ ये बनते हैं एंड शिप होते हैं बॉम्बे एंड अब्रॉड। एंड इनसे फिर स्वीट और सेवरी डिशेस बनती हैं। तो स्वीट डिश में कैसा होता है आप इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हो फिर उनको पानी डाल के थोड़ा सा गलाते हो और फिर उसमें शक्कर स्पाइसेस डाल के उनको फ्लेवर देते हो एंड देन उसमें अंडे तोड़े जाते हैं। तो इट्स अ स्वीट डिश ऑफ पास्ता विथ एग इन दैट। सो स्वीट स्टाइल बनते हैं सरवले सेवरी स्टाइल भी बनते हैं। ओके सेवरी स्टाइल में क्या करते हो आप मटन या चिकन को कोकोनट मिल्क स्पाइसेस स्पेशली फेनेल के साथ पका लेते हो। एंड जब वो थोड़ा सा गलने का बाकी रह जाता है ना उसके रस में आप ये पास्ता छोड़ देते हो बनने के लिए। तो इट कम्स आउट लाइक अ मीट एंड पास्ता डिश। So this is a very Middle Eastern practice which is prevalent in if you could say because जो Hmm. इंडियन स्टाइल पास्ता है वो बहुत तरीके से वेज स्टाइल में बनाए जाते हैं या करी में डाले जाते हैं। बट यहाँ कैसा है अगर आपने मिडिल ईस्टर्न डिश बलालीत देखी होगी तो उसमें सेव में एग्स डाले हुए हैं उसी तरह सरौले में भी स्वीट में एग्स डाले हुए हैं। एंड हमारा जो सेवरी वर्जन है सरोले का उसमें मटन और चिकन पड़ता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पास्ता। सो जो स्वीट वर्जन है वो नाश्ते में सर्व होता है। जो सेवरी वर्जन है इट इज ईटन लाइक अ मेन कोर्स डिश। ओके ऑल्सो देर इज अनदर काइंड ऑफ पास्ता व्हाट वी कॉल कतरी या कोबी भी बोली जाती है। कोबी मतलब कैबेज को हम बोलते हैं क्योंकि ये काटने पर ये ऐसे कैबेज जैसे लगते हैं। तो इसके लिए इनको तो ये एक अलग तरीके का पास्ता है। ये वेज स्टाइल में बनता है खोपड़े के चाव के साथ मतलब फ्रेशली स्क्रेप कोकोनट के साथ ये बनता है। तो ये अलग तरीके से बनता है। एंड दिस इज कॉल्ड कतरी ये भी व्हीट पास्ता है। ऑब्वियसली द अदर वन इज सेव। तो ये जो तलेली शेव हम बनाते हैं सेवैया तो हम तलेली शेव कहते हैं क्योंकि हम उसको दूध में नहीं पकाते हम उसको बटर और शक्कर में मस्त फ्राई करते हैं। तो ये हमारे पास्ता हुए। सो दीज आर वेरी यूनिक टू आवर कम्युनिटी। दिस आई विल से स्टिल दैट अ लॉट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज मेक बट ये दो आपको हमारी कोकनी मुस्लिम कम्युनिटी में ही मिलेंगे। एंड दीज आर Wow, नॉट this is अवेलेबल इन actually एनी beautiful. रेस्टोरेंट। So you've been saying that हमें ये रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा. So this is bringing me to another question that is Konkani Muslim food really available in restaurants or not? सो हमारी क्विजीन अभी मेन स्ट्रीम में आई नहीं है पूरी तरीके से। आज भी यहाँ रेस्टोरेंट्स आपको नहीं मिलेंगे जो इसको खासा तौर पे बनाएंगे। होम शेफ्स हैं जो करते हैं ये काम एंड बेचते हैं चीजें। मैं भी कभी कभी कोई वीकेंड मन किया तो कुछ डिशेस बनाकर सर्व करती हूँ लोगों को। बट ये अभी तक रेस्टोरेंट लेवल पे नहीं आया। एक रेस्टोरेंट है थाने एरिया में मुंबई से Yeah. थोड़ी ही दूर पर जहाँ इट्स अ रेगुलर रेस्टोरेंट जो मुगलाई एंड चाइनीज क्विजीन सर्व करता है। बट बिकॉज द ओनर इज कोकनी मुस्लिम उन्होंने कुछ 8-10 डिशेस कोकनी मुस्लिम खाने की रखी है टू गिव पीपल अ फ्लेवर ऑफ दिस क्विजीन। Otherwise, there is no restaurant per se which is dishing this up. It's largely home chefs who are, serving people these traditional dishes. एंड अभी ये पिकअप हो रहा है लोग जान रहे हैं तो लोग को पता चल रहा है कि ऐसी कुछ क्विजीन है एंड इट्स स्टार्टिंग टू कम इन द मेन स्ट्रीम। अदरवाइज अब तक लोगों को सरवले के बारे में ही नहीं पता था तो रेस्टोरेंट में जाके पूछेंगे कैसे कि हमें सरवले खाने हैं। Right. Okay. So, we still have to talk about desserts, and
you actually mentioned a lot of dessert. You mentioned barfi. You mentioned the Eid में जो चीजें बनती हैं. So, what are other exceptional desserts which are usually found in Konkani food? तो सरवले का मीठा तो बनता है, जैसे मैंने आपको बोला है। घावने का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। सो घावने में लाइक आई सेड दे आर राइस पैनकेक्स। हमारे यहाँ ना क्यूकम्बर्स, तो हम तवसे और तवसा, विच आर दीज लार्ज क्यूकम्बर्स जो ग्रो होती है मानसून में बहुत प्रेवलेंट रहती है, उनको हम स्क्रैप करके वी मिक्स देम विथ राइस फ्लावर एंड जैगरी एंड कार्डेमम, एंड उनके भी हम पैनकेक्स बनाते हैं, तो हम उनको घारी बोलते हैं। उनको हम केक्स में यूज करते हैं, तो उसका जो स्टीम्ड केक बनता है विच इज कॉल्ड कनोरी। फिर हम उनको हल्दी के पत्तों में भी ये पूरे बैटर को स्प्रेड करके स्टीम करते हैं, तो उनको हम ये थापा कहते हैं। तो बहुत ही अलग तरीके की डेजर्ट, क्यूकम्बर इन डेजर्ट आज का फैशन है ना, जुकीनी डेजर्ट, बट ये हमारे यहाँ बहुत पहले से क्यूकम्बर्स यूज होते आ रही हैं इन स्वीट डिशेस। फिर हमारे यहाँ जैसे मैंने खजूरी कहा आपको, दे आर दो पेस्ट्रीज विच आर डीप फ्राइड एकदम कुरकुरी होने तक। खजूरी का एक और वर्जन है जो है गिलाफी खजूरी। अगर आप वो देखोगे ना, तो बिल्कुल आपको बखलावा जैसी लगेगी, क्योंकि उसके लेयर्स हैं फ्लावर के, एंड वो लेयर्स के बीच में ड्राई फ्रूट भरा हुआ है, देन उसको फ्राई किया हुआ है क्रिस्प होने तक, देख नहीं, फ्राई किया हुआ है क्रिस्प होने तक। तो वो गिलाफी खजूरी, गिलाफ मतलब लेयर्स, बिकॉज वो लेयर्स हैं डो के जिसके बीच में ड्राई फ्रूट भरे हुए हैं, तो उसको हम गिलाफी खजूरी कहते हैं। फिर हमारे यहाँ केक्स बहुत खाए जाते हैं। तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ केक्स बनते थे, अब अवन नहीं थे तो केक्स कैसे बनते थे? तो लोगों ने क्या किया, जो केक्स के सांचे हैं वगैरह, उनको ग्राउंड में अवन बना के किया है। तो ग्राउंड में कोयले और ये आग लगाई जाती थी, एम्बर्स रखे जाते थे स्लो हीट, एंड उसके ऊपर वो सांचे रख के उनको ऊपर से ढका भी जाता था, जिसमें वापस आप ऊपर से एम्बर्स रखो, तो एक मेक शिफ्ट अवन जैसा बन जाता था। तो उसमें केक्स भी बनते थे, तो सांचा तो केक। फिर रोट जो है, रोट हमारे कम्युनिटी का सिग्नेचर केक है, जो रवे से या सूजी से वापस बनता है। तो इसका भी आप अगर सिमिलैरिटी ट्रेस करोगे, तो जो बसबूसा है, मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट बसबूसा, वो बिल्कुल सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर टू रोट। तो केक्स का बहुत सारा चलन है। फिर हम लोग अनियंस बहुत यूज करते हैं मीठा बनाने में। तो हमारी एक विंटर स्पेशल डिश है कॉल्ड ढपक्याची शाक। ओके, सो जो कलाबाश गोड है, जो बड़े गोड्स रहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द शेप, बट जो कलाबाश गोड हम बोलते हैं, उसके बड़े बड़े टुकड़े काटे जाते हैं। वो विंटर में ही आता है। उसके बड़े बड़े टुकड़े काटे जाते हैं। वो टुकड़ों को अनियंस के साथ और जैगरी एंड कोकोनट के साथ कुक किया जाता है, स्लो कुक किया जाता है घंटों तक, कम से कम 6 से 8 घंटे तक, एंड एकदम डीप कामेलाइजेशन होता है। एंड उसको फिर हम ऐसे ही खाते हैं या चावल की रोटी के साथ खाते हैं। तो हम अनियंस यहाँ भी यूज करते हैं। मैंने आपको सतरंगी में कहा था मीठे में अनियन एंड एग का प्रेपरेशन है, यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ गोड के साथ अनियन का प्रेपरेशन है स्वीट में। तो हम लोग अनियन यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने गुड़ की बात बहुत की है, तो हमारे यहाँ मीठे में गुड़ बहुत पड़ता है। कुछ कुछ डिशेस में शक्कर पड़ती है। शक्कर ज्यादातर उन डिशेस में यूज होती है जहां आपको कलर नहीं चाहिए गुड़ का, क्योंकि जहां आपको एक मस्त गुड़ का कलर चाहिए ना, या वो डेंस कामेलाइजेशन से आप गुड़ यूज करते हो। जो डिशेस जैसे शक्कर पारे मैंने कहा, जहां वो सूजी के टुकड़े बनाकर हम यूज करते हैं, उनको व्हाइट ही रहना है कलर, तो वहां मैं गुड़ नहीं यूज करूंगी, वहां मैं शक्कर यूज करूंगी उसमें। तो सुकरी सुकरी जो मैंने वो राइस फ्लेक्स से मीठा बनाया हुआ बोला, उधर भी शक्कर यूज होती, क्योंकि राइस फ्लेक्स का कलर व्हाइट है। तो बहुत सारी डिशेस में गुड़ यूज होता है, बट कुछ कुछ डिशेस में हम शक्कर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो एक वीडियो बहुत कम है टू टेल अबाउट ऑल द स्वीट डिशेस, बट जो भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी अलग है और थोड़ी हमारे क्विजीन की यूनिकनेस है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। Wow, actually this is very interesting, जिस तरीके से अनियंस यूज हो रहे हैं,
then goats use हो रही हैं, egg का हलवा बनता है, but this preparation was very unique. So this is very unique, you know. So anyways, before ending, just what are your top three dishes from the community? I know the question doesn't do any justice, but I'll still go forward with it. Your top three dishes from your cuisine. Okay, these top three dishes are my personal opinion, people. So don't Yeah, hold it against me because हर uh, बंदे की अपनी अलग डिश होगी. of Okay, course. तो बट मुझे ये टॉप थ्री लगती है बिकॉज ये बहुत ही यूनिक है टू आवर कम्युनिटी. सो मैंने आपको सरवले बताया. सो द स्वीट एंड सेवरी प्रेपरेशन ऑफ सरवले. सेकंड इज जो धपक्याची शाक मैंने बोली, जहाँ गोड एंड अनियन मिलाकर एक स्वीट डिश बनती है. दैट इज अ वेरी यूनिक डिश. थर्ड डिश ऐसी है जिसका मैंने मेंशन वीडियो में नहीं किया, बट अभी आपने जब पूछा तब मेरे ख्याल में आया. तो हम लोग एक डिश बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कस. ओके, आप इसे हलीम का कजिन कह सकते हो बिकॉज दिस डिश इज वेरी मच लाइक अ ग्रूअल, जैसा हलीम है. बट उसका प्रेपरेशन बहुत ही यूनिक है हमारी कम्युनिटी में. आपको थोड़ा बहुत उसका सिमिलैरिटी अलीसा में मिलेगा, जो केरला क्विजीन की एक डिश है. या कश्मीर में भी जो हरीस बनता है उसमें आपको शायद मिले. बट हम क्या करते हैं, हम गेहूं को भिगो कर रखते हैं रात भर, और दूसरे दिन हम उन्हें पकाते हैं स्पाइसेस, होल स्पाइसेस के साथ एंड कोकोनट मिल्क के साथ. एंड फिर उसमें मटन छोड़ा जाता है एंड और स्लो कुक किया जाता है. तो वो एक तरीके से ग्रूवल जैसा बनता है. अब हलीम में आप व्हीट दाल सब कुछ डालते हो, बट यहाँ हम सिर्फ व्हीट यूज कर रहे हैं. हम कोकोनट मिल्क यूज कर रहे हैं एज अ टच ऑफ द कोस्ट, and it is slow cooked till the mutton falls off the board. So it's a very different dish. Again, you will find it only in the homes of Konkani Muslims. You will not find it in any restaurant. So it's called kas. So I think these three are my top three dishes of the Konkani Muslim cuisine, purely based on their uniqueness of character. Wow, this is very interesting. So right now, what is your favorite dish? My favorite dish. Oh, too hard to pick. But I like all of them equally. I'm not a fussy eater at all. But yeah, sarole for sure, any day. Wow, wow. This actually gets me to the point now. I have to do more research on Saravali and see how it's done. So, thank you so much for the amazing session and the unique bringing out this unique cuisine on in front of everyone because सबने नॉर्थ इंडिया में तो मुस्लिम्स जब हम बोलते हैं तो इट्स लाइक कबाब्स होंगे, हलीम होगा एंड निहारी मिल जाएगी आपको, बिरयानी मिल जाएगी. इससे ज्यादा लोग नहीं सोच पाते हैं, बट द insight which you provided, it was really unique and it actually proves that there's so much to explore in different communities as well. So this is just our initiative to bring out those regional cuisines out, and we hope to do this as much as possible. So thank you so much Thank for you so joining in, much. and thank you all the viewers for joining in for the session, and we'll be back with another episode. Thank you, Tanya. Pleasure is all mine.